एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी देखेंगे जो बैक्टीरिया की सेल होती है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। चलिए थोड़ा ब्रीफली हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फिर उन पार्ट्स को डिटेल्स में पढ़ेंगे। Bacterial cell is covered by an outer layer which is present outside the cell wall. This is called as glycocalyx. Glycocalyx के अंदर एक rigid covering होती है which protects the cell, that's called as cell wall. और cell wall के अंदर present होता है cell membrane और plasma membrane of bacterial cells. This plasma membrane bears flagella which helps these bacteria to move from one place to another place, that is they help in locomotion. Also present on the surface of these bacterial cells are small hair-like structures called pili and fimbriae. Plasma membrane के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है that is called as cytoplasm. इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है क्रोमोसोमल डीएनए which is the genetic material of bacteria. इसके अलावा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मिड्स which are also DNA molecules, और 70S ribosomes are also present in the cells of these bacteria. चलिए अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे साइज। जो बैक्टीरियल सेल्स इनकी लेंथ होती है 0.5 to 5 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर लेंथ का बहुत ही छोटा यूनिट होता है, और बैक्टीरियल सेल्स का डायमीटर होता है 0.2 to 2 माइक्रोमीटर। दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, मींस दे कैन बी ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप, जो कि चीजों को मैग्नीफाई कर देता है, जो कि चीजों को बड़ा करके दिखाता है। बट देयर आर सम बैक्टीरियाज which are very large, जो कि माइक्रोस्कोप के बगैर भी दिखते हैं। See them with the naked eyes. और कौन कौन से बैक्टीरिया है? Thiomargarita, Namibiensis and Epilopicium fischelsoni. They are very large bacteria and they can be easily seen with unaided eye or with naked eye. You don't have to use microscope to visualize them, to see them, because they are very large in size. Now, shapes of these bacteria. Bacteria have 4 basic shapes. फर्स्ट बेसिक शेप इज कोकस। कोकस बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के बने होते हैं। सेकंड शेप इज बैसिलस, मींस रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। थर्ड वन इज विब्रियो, हियर यू सी द बैक्टीरिया इज कॉमा शेप्ड और कर्व्ड रॉड शेप्ड। एंड द फोर्थ वन इज स्पाइरला, where the bacteria is spiral in shape or helical in shape. कोकस बैक्टीरिया को थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। कोकस बैक्टीरिया जो होते हैं ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। We have डिप्लोकोक्स, where 2 coccus cells are connected together in pairs. Streptococcus, where these coccus cells form a chain. इस तरह से we have tetracoccus bacteria, where bacterial cells form squares. इस तरह से we have Sarcini, where coccus cells form cubes. These coccus cells have cube-like arrangement. And finally we have Staphylococcus bacteria, where these coccus cells are clustered just like grapes. So they have grape-like clusters. Next is Bacillus. Bacillus is also of 2 types. We have Diplobacillus, जहां पर जो bacillus cells है they are present in pairs, and Streptobacillus, where these bacillus cells form chain. अच्छा, हमारे पास एक कंफ्यूजन होता है, what is difference between Spirilla and Spirochetes? Both are helical shaped bacteria, लेकिन जो Spirilla बैक्टीरिया होते हैं they are rigid, they cannot change their shape. इनको हम बेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो Spirochetes होते हैं ये हेलिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनकी बॉडी मुड़ सकती है, जिनकी बॉडी बेंड हो सकती है। Now flagella, they have an important part called as flagella. These flagella are long filamentous appendages or outgrowths of the cell which help in locomotion. Locomotion means where one individual moves from one place to another place. They originate from plasma membrane. They originate from plasma membrane. They are the locomotory appendages of the bacterial cells. Now let's talk about types of bacteria on the basis of presence or absence or number of flagella. We have atrichous bacteria, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें flagella प्रेजेंट नहीं होते हैं। We have monotrichous bacteria, जिनमें एक flagella प्रेजेंट होता है at one end. We have amphitrichous bacteria, जहां पर दोनों साइड पर एक एक flagella होता है। Then we have lophotrichous, where a bunch of flagella is present at one end. And finally we have peritrichous bacteria, where these flagella are present all over the surface of bacterial cell. Now let's talk about the structure of flagella present in bacteria. Flagella in bacteria has 3 parts. One part that is inserted in the cell membrane and cell wall. This is called as basal body. This is called as basal body. This is the part which generates energy, which makes this flagella to rotate or to beat. Cell के बाहर इसका दूसरा part होता है. This is the curved part of the flagella. This is called as hook.
और फिर हुक के साथ एक लॉन्ग फिलामेंट अटैच्ड होता है. These are the three parts of the flagella of bacteria. Again, I am repeating, a flagella in bacteria has three parts. The basal part present in the cell membrane and cell wall. Then we have hook which is present outside the cell and is a curved structure. Then we have a longest part of the flagella, that is filament. Now जो flagella bacteria में होता है, it is made up of a protein called as flagellin protein. Eukaryotes में जो flagella present होता है, that is made up of microtubules or tubulin protein. Now let us talk about other parts of the cell. Here you can see that this bacterial cell has three layers. सबसे बाहर वाली जो layer है, this layer is called as glycocalyx. It's a layer of material lying outside the cell wall is called as glycocalyx. Glycocalyx की जो layer होती है, this is present outside the cell wall. And this glycocalyx is made of polysaccharides or carbohydrates. अब यहां पर आप देखिए जो glycocalyx होते हैं, ये दो किस्म के होते हैं, capsule and slime layer. If glycocalyx is well organized and it is tightly attached with the cell surface, it is called as capsule. However, अगर glycocalyx unorganized हो and it is loosely bound or loosely attached with the cell surface, then it is called as slime layer. Now, what are the functions of glycocalyx? Capsule protect cell from macrophages. Say we have this bacterial cell and this bacterial cell is protected with, or it is covered with glycocalyx. When this bacterial cell enters into the human body or into the bodies of mammals, this cannot be destroyed by macrophages. These are important cells of immune system which destroy large foreign particles. If this bacterial cell enters into the body, this capsule protects these cells or these bacterial cells from these macrophages, and they are able to establish themselves in the bodies and cause infection and then cause diseases. ये जो glycocalyx है, it prevents desiccation, means drying of cells. Glycocalyx जो है, it also helps in attachment of these bacterial cells on the solid surfaces, especially hosts. और slime layer जो है, it helps in the movement of some bacteria. It helps some bacteria to move from one place to another place. Let's talk about cell wall. A cell wall is present outside the plasma membrane and inside the glycocalyx. So this is a cell wall. यहाँ पर आप देखिए, this is a cell wall, and this cell wall is a non-living outer rigid layer protecting the cell. का काम होता है to protect the cell, और ये rigid होती है. It cannot change its shape. अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन है, जिसे म्यूरिन भी कहते हैं, ये किस चीज का बना होता है? ये दो चीजों का बना होता है. एक तो बना होता है कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स का, और बना होता है पेप्टाइड्स का और प्रोटीन क्रॉस ब्रिजेस का. चलिए जी, यहां पर आप देखते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं. यहां पर दो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. वन इज कॉल्ड एज एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड. दिस इज एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, जिसे हम NaM भी लिखते हैं, which is connected to another glucose derivative. This is N-acetyl glucosamine. This is N-acetyl glucosamine. These are the two carbohydrates which are joined together to form disaccharides. उसके बाद ये जो disaccharides होते हैं, ये continuously एक दूसरे से मिलते हैं to form long chains of carbohydrate, and this long chain of carbohydrate is called as glycan. Glycan is polymer of carbohydrates. It is a polymer of glucose or polymer of monosaccharides. यहां पर जो N-acetyl म्यूरेमिक एसिड है, इसके साथ एक टेट्रापेप्टाइड बाउंड होता है, और इस टेट्रापेप्टाइड में देयर आर 4 अमीनो एसिड्स. वी हैव L-alanine, L-glutamate, diaminopamelic acid and D-alanine. These are 4 amino acids which make this tetrapeptide. So we have glycan and we have peptide. That's why it's called as peptidoglycan. Peptido stands for this tetrapeptide or these peptides, and glycan means this polymer of carbohydrates. This is another unit. This is a glycan, and it is tetrapeptide. It is tetrapeptide. Now these two units are joined together by a pentapeptide glycine chain. This is pentapeptide glycine chain or glycine pentapeptide interbridge which holds these units together. Now one important thing, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ये सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाहर प्रेजेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल. अब इस पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल के साथ कुछ केमिकल्स अटैच्ड होते हैं जिन्हें टिकोइक एसिड कहते हैं. टिकोइक एसिड. इफ these chemicals are associated with only peptidoglycan cell wall, they are called as ticoic acid. However, if these chemicals are attached with cell membrane or plasma membrane, they are called as lipoticoic acid. ये टिकोइक एसिड क्या होता है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लाइसरॉल जॉइंड बाय फॉस्फेट. यहां पर आप देखिए, दिस इज टिकोइक एसिड, दिस इज ग्लाइसरॉल, दे आर कनेक्टेड बाय दीज फॉस्फेट्स,
अगेन यहां पर आप देखिए, दिस इज फॉस्फेट, यहां ऊपर की तरफ फिर से ग्लाइसरॉल होगा, सो इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लाइसरॉल कनेक्टेड बाय फॉस्फेट ग्रुप्स। अब इनका काम क्या होता है? दे मेक सेल वॉल रिजिड, और ये सिर्फ प्रेजेंट होते हैं इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड दिस टिकोइक एसिड्स दे आर एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये जो सेल वॉल होता है पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल बैक्टीरिया में, क्या कोई चीज है जो इसको डिस्ट्रॉय करती है? हां, देयर आर टू थिंग्स। लाइसोजाइम, जो कि एक एंजाइम होता है, दिस लाइसोजाइम डिस्ट्रॉयज दिस पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल, एज वेल एज पेनिसिलिन, दिस इज एन एंटीबायोटिक, दिस एंटीबायोटिक also destroys this cell wall made of peptidoglycan of bacteria. So peptidoglycan cell wall is destroyed by these two things, this lysozyme, which is an enzyme, and this penicillin, which is an antibiotic. Now let's talk about plasma membrane. अब सेल वॉल के अंदर एक और लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होता है, एक लेयर प्रेजेंट होती है, दिस लेयर इज कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दो चीजों का बना होता है, फॉस्फोलिपिड्स का और प्रोटीन्स का। इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स, एंड इट सराउंड्स द साइटोप्लाज्म। ये देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मटेरियल होता है, दिस मटेरियल इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, व्हिच इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहां पर आप देखिए, एक टर्म है, दैट टर्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? A cell without cell wall is called as प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट में एक सेल का सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म इंक्लूड होता है, और सेल वॉल एक्सक्लूड होता है। सो सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लास्ट। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इट इज सिलेक्टिवली परमेबल, इट डज नॉट अलाउ ऑल द मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनटू द सेल और एग्जिट द सेल और लीव द सेल। ये कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है टू एंटर इनटू द सेल, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है टू एग्जिट द सेल और टू लीव द सेल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर मैं आपको बोलने जा रहा हूं, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट कंटेन्स ए स्पेशल लिपिड कॉल्ड एज होपेनॉइड्स। आप देखिए, जो यूकेरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उनमें प्रेजेंट होते हैं स्टिरोल्स, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं या बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, उनमें स्टिरोल्स प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि स्टिरोल के बदले होपिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये होपिनॉइड्स स्टिरोल से मिलते जुलते लिपिड्स होते हैं, विच आर प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। एक और चीज, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये किसी किसी जगह पर इन्वेजिनेट हो जाते हैं, इनफोल्ड हो जाते हैं। These infoldings or these invaginations, they are called as mesosomes. अब ये जो mesosomes है, they help in cell division. They help these bacterial cells to divide. They also help in DNA replication. They help DNA molecules to replicate, to increase their number or to duplicate its number. So they help in cell division. They help in DNA replication. This is a plasma membrane. It is bilayer. It is having two layers. This is layer number 1 and this layer number 2. और ये जो molecules है, these molecules are phospholipids. Phospholipids यानी ऐसे lipids जिनमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं proteins. We have two types of proteins which are associated with plasma membrane. We have those proteins which are present within this plasma membrane. These proteins are called as intrinsic proteins, and there are other proteins which are present on the surface of plasma membrane. These are called as extrinsic proteins. ये extrinsic proteins बाहर के surface पर भी हो सकते हैं, ये अंदर के surface पर भी होते हैं। These are extrinsic proteins which can be easily removed. इसके अलावा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मैंने अभी बोला, लिपिड्स होते हैं, खास लिपिड्स होते हैं, दे आर नोन एज होपिनॉइड्स। इसके अलावा इन बैक्टीरिया के सरफेस पर फ्लैजिला के अलावा और हेयर लाइक अपेंडेज या स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ दीज अपेंडेज। वी हैव फिम्ब्रियाई, दिस इज फिम्ब्रियाई, दे आर शॉर्ट फाइन हेयर लाइक अपेंडेज दैट आर थिनर देन फ्लैजिला। ये फ्लैजिला से मिलते जुलते हैं, लेकिन ये फ्लैजिला से थोड़े छोटे और थोड़े पतले होते हैं। और एक सेल के सरफेस पर देयर आर अबाउट 1000 फिम्ब्रियाई। ये सिलेंडर ट्यूब्स होते हैं, यानी इनके बीच में खाली जगह होती है, पतले सी ट्यूब्स होते हैं, और इनका काम होता है, एंड दे हेल्प दीज बैक्टीरियल सेल्स टू अटैच देमसेल्व्स विद द होस्ट सेल और विद द सॉलिड सरफेस। सो दिस, यहां पर आप देखिए, दिस इज द फिम्ब्रियाई, दिस इज द फिम्ब्रियाई। इन बैक्टीरियल सेल्स के सरफेस पर थोड़े लंबे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज पिल्लाई। Pilla is plural and इसका singular है pillus. This is pillus. One is pillus and many are called as pilli. They are short, hairy appendages present on the surface of gram-negative bacteria. ये बहुत important है. Pilli are present only on the surface of gram-negative bacteria. ये जो पिल्लाई होते हैं, इनका नंबर कम होता है 1 से 10.
पिल्लाई प्रेजेंट होते हैं ऑन ईच बैक्टीरियल सेल, तो इनका नंबर फिम्ब्रियाई से कम होता है। लेकिन ये जो पिल्लाई होते हैं ये फिम्ब्रियाई से थोड़े लंबे होते हैं। और ये किस प्रोटीन के बने होते हैं? ये बने होते हैं पिलिन प्रोटीन के, पिलिन प्रोटीन के। और इनका काम क्या होता है? दे हेल्प इन कंजुगेशन, दे हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल टू अनदर बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल है उस सब मटेरियल को कहते हैं साइटोप्लाज्म। दिस इज साइटोप्लाज्म, सबस्टेंस ऑफ सेल इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अब ये साइटोप्लाज्म किस चीज का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ 80% वाटर, जिसमें डिसॉल्व होते हैं या प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स, carbohydrates, lipids, inorganic ions, and low molecular weight compounds like amino acids, nucleotides, etc. इसके अलावा वहां पर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे 70s राइबोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज, क्रोमोसोमल डीएनए एंड प्लाज्मिड्स। चलिए इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे राइबोसोम। जो बैक्टीरिया होते हैं ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, और प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स होते हैं, और यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम्स होते हैं। 80s ribosomes are present in eukaryotic cells. However, 70s ribosomes are present in prokaryotic cells. Ribosomes को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। These are the structure जिसके ऊपर जो mRNA मॉलिक्यूल है वो ट्रांसलेट होता है, यानी यहाँ पर ट्रांसलेशन होती है, और mRNA में जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है दैट इज ट्रांसलेटेड इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोटीन, यानी जो राइबोसोम्स होते हैं इनके सरफेस पर प्रोटीन्स बनते हैं। अब जो 70s राइबोसोम है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। इट हैज अ लार्ज सब यूनिट व्हिच इज कॉल्ड एज 50s सब यूनिट एंड अ स्मॉल सब यूनिट, सॉरी दिस इज स्मॉल सब यूनिट, दिस इज स्मॉल सब यूनिट आल्सो कॉल्ड एज 30s सब यूनिट। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये बने होते हैं प्रोटीन्स और आरएनए मॉलिक्यूल्स के। राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स मिलते हैं तब जाके राइबोसोम्स बनते हैं। 50s जो सब यूनिट है इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए, वन इज 23s एंड अनदर इज 5s आरएनए मॉलिक्यूल्स प्लस प्रोटीन्स। ये तीन चीजें मिलाकर बनाते हैं लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम कॉल्ड एज 50s सब यूनिट। और जो ये छोटा वाला सब यूनिट होता है राइबोसोम का ये बना होता है 16s आरएनए मॉलिक्यूल का और प्रोटीन्स का। ये दोनों सब यूनिट्स मिलते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन और बनाते हैं 70s राइबोसोम्स। ना ये S क्या होता है? मैंने बोला आपको 50s और यहां पर मैंने बोला आपको 70s। S का मतलब होता है सिविड-बर्ग कोएफिशिएंट। ये S डिटरमाइन करता है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं? हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब में सपोज हमने कोई मटेरियल डाला और इस मटेरियल में पार्टिकल्स होते हैं ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड डिफरेंट डेंसिटीज। ये S डिटरमाइन करेगा कि जो पार्टिकल है वो कितनी तेजी से नीचे की तरफ यानी सेडिमेंट हो जाएगा। जिन पार्टिकल्स का हायर S वैल्यू होगा वो जल्दी से सेडिमेंट हो जाएंगे, जिन पार्टिकल्स का S वैल्यू कम होगा वो धीरे धीरे सेडिमेंट हो जाएंगे ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि नेक्स्ट इज इंक्लूजन बॉडीज। अब यहां पर आप देखिए दिस इज अ बैक्टीरियल सेल। इसके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक्चुअली रिजर्व्स होते हैं ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के। कौन कौन से इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल्स में? आप देखिए ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, कुछ ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन। व्हाट इज ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर, इट इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड इट इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन बैक्टीरिया। ये आपको याद रखना है, ग्लाइकोजन इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन बैक्टीरिया। इसके अलावा बैक्टीरिया में कार्बोक्सिसोम्स होते हैं, ये भी इंक्लूजन बॉडीज होते हैं जो कि स्टोर करते हैं रुबिस्को। आपको पता है रुबिस्को इज एन इंपॉर्टेंट एंजाइम for photosynthesis. For photosynthesis, this Rubisco is the most important enzyme. जब हम photosynthesis पढ़ेंगे तब मैं आपको बोलूंगा कि इस Rubisco का क्या काम है। नेक्स्ट इज पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स जो कि स्टोर करते हैं फॉस्फेट। जो ये पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? और इनको कहते हैं वोलेटिन ग्रेन्यूल्स या इनको कहते हैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, क्योंकि ये डिफरेंट डाइज के साथ डिफरेंट कलर्स देते हैं। और कुछ बैक्टीरिया मैग्नेटिक क्रिस्टल्स और मैग्नेटिक केमिकल्स को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटोसोम्स। व्हाट आर दिस मैग्नेटोसोम्स? दीज आर इंक्लूजन बॉडी, दीज आर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन सम bacteria. So in bacteria there are present inclusion bodies which are repository of important organic or inorganic molecules. Now next is genetic material of bacteria. बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है इसे कहते हैं हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है ये सेल में जिस जगह प्रेजेंट होता है उस जगह को न्यूक्लियोइड कहते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियोइड? इट इज द रीजन वेयर द बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। इसे हम मेन डीएनए भी कहते हैं, मेन डीएनए बिकॉज सेल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दिस डीएनए। दिस इज द इंपॉर्टेंट डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट विद इन द बैक्टीरियल
और यही डीएनए मॉलिक्यूल ही डिटरमाइन करता है सेल का साइज, शेप, इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शनिंग। ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, इट इज डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। एक डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है एक बैक्टीरियल सेल में, और कभी कभार कुछ स्पीशीज में दो डीएनए मॉलिक्यूल्स और दो बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि हिस्टोन प्रोटीन्स के बदले पॉलीएमाइन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, थोड़ा यहां पर देखेंगे। जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है, ये बना होता है दो चीजों का। एक तो बना होता है डीएनए मॉलिक्यूल का, विच इज रैपिड अराउंड दीज proteins, these spherical protein, these globular protein, these proteins are called as histone proteins. ठीक है, so this is DNA molecule which is rapid, which is wound around these histone proteins to form a structure called as chromosomes. यहां पर जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, यहां पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, बल्कि प्रेजेंट होते हैं polyamines which are also proteins. And this bacterial chromosome it occupies 20% of the cell volume. और ये DNA molecule जो है, it is always attached with plasma membrane and it is not surrounded by nuclear एनुला बिकॉज दिस इज ए प्रोकैरियोटिक सेल। इस बैक्टीरियल डीएनए के अलावा भी बैक्टीरियल सेल्स में कुछ और छोटे छोटे डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कहते हैं प्लाज्मिड्स। ये प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल्स के अलावा भी कुछ डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ऑटोनॉमस होते हैं, यानी जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जिनका मेन डीएनए के साथ कुछ लेना देना नहीं होता है, और ये खुद ब खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ मेन डीएनए। So these plasmids are extra chromosomal, they are additional DNA molecules, they are autonomous, self-replicating, खुद ब खुद ही replicate कर सकते हैं। ये circular in shape होते हैं और ये भी double stranded molecules होते हैं। They can replicate independently of chromosomal DNA और इनका साइज बहुत ही छोटा होता है as compared to main DNA। और इसके अलावा ये सेल के लिए उतने जरूरी नहीं होते हैं, सेल इनके बगैर भी सर्वाइव कर सकती है, लेकिन अगर प्रेजेंट होंगे उनकी वजह से सेल को फायदा ही पहुंचता है इन डिफरेंट कंडीशंस में। और एक बैक्टीरियल सेल में टोटल नंबर ऑफ प्लाज्मिड मॉलिक्यूल्स को कहते हैं कॉपी नंबर। कॉपी नंबर इज टोटल नंबर ऑफ प्लाज्मिड मॉलिक्यूल्स इन ए सेल एंड इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 100। किसी सेल में एक, तो किसी सेल में 50 प्लाज्मिड मॉलिक्यूल्स होंगे, तो किसी में 100 प्लाज्मिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एफ प्लाज्मिड। एफ का क्या मतलब है? एफ का मतलब है फर्टिलिटी। दिस इज फर्टिलिटी। अब जिस सेल में एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, दैट सेल इज कॉल्ड एज एफ प्लस सेल, एफ पॉजिटिव सेल। और जिस सेल में एफ प्लाज्मिड एब्सेंट होता है, दैट्स कॉल्ड एफ माइनस सेल। This F plasmid is essential for the formation of this tube. This tube is called as conjugation tube, and with the help of this tube, DNA is transferred from one bacterial cell into another bacterial cell. So जिस सेल में F plasmid होगा, only that cell can form conjugation tube, and with this conjugation tube, genetic material is passed on from one bacteria to another bacteria, or we can say genetic material is passed from F plus cell to F minus cell. नेक्स्ट इज आर प्लाज्मिड। आर का मतलब यहां पर है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ये आर प्लाज्मिड्स जो है, ये कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं, ये कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं, क्योंकि इनमें जीन्स होते हैं और जीन्स एंजाइम्स बनवाते हैं जो कि इनएक्टिवेट या डिग्रेड करते हैं एंटीबायोटिक्स को। एंटीबायोटिक्स को। तो अगर आप इन बैक्टीरिया को जिनके पास आर प्लाज्मिड है, उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास आर प्लाज्मिड होता है, और आर प्लाज्मिड की वजह से कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स को इनइफेक्टिव करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट इज कॉल प्लाज्मिड। अब कॉल प्लाज्मिड जो होते हैं, यहां पर आप देखिए, दिस इज द बैक्टीरियल सेल, इट हैज गॉट कॉल प्लाज्मिड। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉल प्लाज्मिड, इट प्रोड्यूसेस अ टॉक्सिन दैट्स कॉल्ड एज बैक्टीरियोसिन। दिस बैक्टीरियोसिन kills those bacterial cells which lack call plasmid, और जिसकी वजह से जो ये बैक्टीरिया होते हैं, ये अपना कंपटीशन कम करते हैं, और जिसकी वजह से ये अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं इन एनी एनवायरनमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।